السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور میری اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین، تم نے کیا کہا ہے؟ بڑی بات آئی تو بڑی محبتیں دکھا رہے ہو۔ سلام کریں ناظرین کو۔ سوری، ہاں السلام علیکم ناظرین، یہ چونکہ اس نے مجھے اپنی جان کا اس لیے میں ہلکا سا گھبرا گیا تھا، چونکہ جب یہ عزت کرتا ہے تو وہ پوائنٹ ذرا مشکل ہوتا ہے میرے لیے۔ ناظرین، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ستمبر شروع ہوا چاہتا ہے، آگے وہ دن شروع ہو جائیں گے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دنے تو باندر آتی پالے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب ناظرین کو یاد کرا دوں، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، اور وہ لوگ جو گھر میں خود کام کرتے ہیں ان کو بھی، کہ اپنے لحاف وغیرہ اور رجائیاں وغیرہ نکال کے توپیں شوپیں لگوا لیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے جراثیم مر جاتے ہیں، اور یہی دھوپیں جو ہیں آگے جو ایک دو ہفتے پڑنی، یہی وہ دھوپ ہے جس سے جراثیم مریں گے۔ اس کے آگے پھر دھوپ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کا پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رضائیوں کو نگندنے کا عمل یاد ہے تمہیں؟ اللہ، خالہ نے آمتے اتنی اچھی رجائی نگند کے دیتی تھی ہمیں، تمہیں کیا پتہ ہے؟ روئی، ساری رضائی میں سے روئی نکالی جاتی تھی، اس کو کسی پینجے پہ جہاں پر روئی کی پنجائی ہوتی تھی، اور پھر اس کی دوبارہ بھرائی ہوتی تھی، اور دوبارہ اس کی پوری رضائی کی سلائی ہوتی تھی۔ اچھا، میں تمہیں مئیے کی بات بتاؤں، میرا جو وڈا تایا نہیں جس کا میں اکثر یہ کرتا ہوں، اتنی بڑی سوئی ہوتی تھی وہ، اس کو کھدوئی کہتے تھے۔ کھندوئی کہتے تھے۔ یار تم تو باقاعدہ ایک دیسی انسان پائے گئے۔ میں نے کب کہا یار میں ورجینیا میں رہتا ہوں بھائی؟ یہ مجھے کلا ویخ کے تم کافی کچھ کہتے ہیں، بڑا روب مجھ پہ ڈالتے۔ لو جی، میں بتانے یہ لگا تھا کہ میری جو اپنا وڈا تایا جو ہے نا میرا، وہ مجھے کئی دفعہ شرارت پہ کہا کرتا تھا، یہ پتر باہر آیا نہیں تو تینوں پینجا لانا ہے میں پھڑ کے۔ تو میں اتنا نہیں تھا گھبراتا، میں نے کہا پینجا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کو پیار سے پھینٹی کو پینجا کہتے ہیں۔ جب میں پہلی دفعہ میں نے روئی کو پینجا لگاتے ہوئے دیکھا نا پینجے کو، میں بڑا گھبرایا۔ میں نے کہا اس طرح روئی بیچاری چھوٹے چھوٹے وہ ٹکڑوں میں اور چھوٹی چھوٹی گولے سے اس کے بن کے اڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا تایا پینجا لگائے گا تو یہ کہ اس طرح گولے اڑ جائیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اس کے بعد جب بھی تایا نے کہا نا میں پینجا لگاؤں گا، ہم سیدھے ہو گئے فوراً۔ شہر میں دو تین اس طرح کے یعنی پینجے ہوا کرتے تھے، پنجائی کی، یہاں پہ روئی کی پنجائی کی جاتی ہے، روئی بیٹھ جاتی ہے نا، پھس جاتی ہے، یعنی اس کو پھر دوبارہ سے نواں کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے اس کو پینجا لگا۔ لیکن اب تو لوگوں کے گھروں میں اکثر بلینکٹس دیکھے جاتے ہیں، اور رضائیوں میں بھی پولی ایسٹر کی رضائیاں آ گئی ہیں، اور جو مزہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں پینجے کا کہ آپ لوگ بلینکٹ بچے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا بہرحال خیال ہے کہ پولی ایسٹر کی رضائی گرمائش کے حوالے سے زیادہ ایفیکٹو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو مزہ روئی کی رضائی میں ہے نا وہ پولی ایسٹر میں نہیں۔ پولی ایسٹر کی رضائی جو ہے وہ گرمی زیادہ کرتی ہے، بلکہ ساڑ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات جو اب کم نظر آتی ہے، اب تو ہر طرف ریڈی میڈ سویٹری مشینوں کے بنائے ہوئے، ہاؤزریوں کے بنے ہوئے لوگ پہن لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، بلکہ ہمارے بچپن میں کہہ لیں کہ جب گھر میں سردیوں میں داخل ہوتے تھے نا، تو مائیں بہنیں سب فٹافٹ سلائیوں پہ سویٹر اون رہی ہوتی تھی۔ کسی نے پیلا چڑھایا ہوا ہے، کسی نے گلابی چڑھایا ہوا ہے، کسی نے ڈارک لیلا چڑھایا ہوا ہے، تڑا تڑ۔ اچھا، جرابوں تک بچوں کی، چھوٹے بچوں کی جرابیں بھی اون کی گھر میں بنا لیتی تھی۔ نانیوں دادیوں کا تو بیچاریوں کا کام ہی یہ ہوتا تھا، اور کس قدر محبت ہوتی تھی، کس قدر محبت کے ساتھ وہ سویٹر اونتی تھی بچوں کے لیے، سب کے لیے، سارے لوگوں۔ یہ اسی دور میں جب ہر طرف سردیاں شروع ہونے سے پہلے اون ہی اون ہوتی تھی، تو اسی وقت شاعر نے کہا تھا نا، ان کا ہی تصور ہے محفل ہو یا تنہائی، ان کا ہی تصور ہے۔ ہوئے یار، تم نے اردو ادب پہ یہ احسان آج کی ہے اتنی مدت کے بعد کہ اتنے خوبصورت شعر جو ہیں
वो उनके लिए नहीं थे, उनके लिए थे। जबरदस्त। यस, मैंने तो तुम्हें शुरू के शो में ही कह दिया था कि तुम बहुत सीखोगे मुझसे। डोंट वरी, ये तो होता ही है ना आपस में एक दूसरे को। अच्छा, एक और सर्दियों फटाफट गल आगे ले जाओ वरना अच्छा मैं बताती हूँ, अक्सर ये भी जब मौसम चेंज होता है ना, जैसे अब सर्दियां आएंगी तो गर्मियों के कपड़ों को समेटने का भी एक पूरा प्लान तैयार होता था कि किस तरह उनको समेटना है। जो गर्मियों के कपड़े हैं उनको टैचियों में रख के, संदूकों में रख के, उस पे सूखी हुई नीम के पत्ते डाले और फिनाइल की गोलियां, या फिनाइल की गोलियां, और उसके बाद जब अगली गर्मियों में वो निकालते थे फिनाइल की गोलियों की कपड़े में खुशबू आती थी। कितने अरसे वो जाती ही नहीं थी स्मेल। मैं तो कितनी देर कपड़े तो आता ही नहीं था, इसलिए कि चलो फरनैल की गोलियां सूंघता जाऊं। मुझे इसी वजह से छोटे होते चूहा भी कहते थे। मुझे तो ये जान के खुशी हुई है कि तुम्हारे दौर में भी फिनाइल इजाद हो चुकी थी। जी, क्या मतलब है तुम्हारा? यानी मेरे बचपन में क्या कपड़ों में बत्ती बोर की गोलियां रखते थे? फिनाइल की गोलियां रखी जाती थी। और एक और मैया की चीज आप लोगों को याद कराऊं, आप बहुत हंसेंगे जी। हर बच्चे का घर में एक अलग संदूक होता था, छोटा सा टैची, और लोहे का टैची, वो उसको क्या कहते थे, ट्रंक छोटा सा होता था। हाँ जी, हर बच्चे का अपना अपना होता था। और जूं जूं बड़े होते उस दौर में बच्चे भी 6-6 7-7 हुआ करते थे ना, ज्यादा कसरत औलाद होती थी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार हंस के ना क्या करो, नजर लग जाती है। सबसे पहले नीचे एक बड़ी पेटी होती थी लकड़ी की, जो बहुत यानी महंगी होती थी, लकड़ी की बड़ी पेटी संदूक के साइज की, उसमें रजाइयां, कंबल वगैरह, तकिए, चादरें, फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद जो है उससे बड़ा संदूक, फिर उससे वैसे मैं माफी चाहता हूँ, तुम बड़े छोटे बनती हो मुझसे। मैं छोटे, यकीन करो मैंने ये लकड़ की पेटी नहीं देखी, इसने देखी हुई। मैंने अपनी वालदा साहबा से सुना हुआ, या शायद अपनी नानी से सुना था। यार बहुत पुरानी हो तुम यार, तुम मेरी नानी के क्लास फेलो तो नहीं हो? क्योंकि मेरी नानी भी हल्की हल्की इंग्लिश बोल लेती थी। ओह, माय नानी वाज आल्सो रावियन। गुड गुड। अच्छा जी, आगे खाने पीने की भी जो दिलचस्प चीजें हम अब बननी शुरू हो जानी है, जो सर्दियों में बहुत मजा देती हैं, रजाई के अंदर बैठ के खाते हुए या अंगीठी पास जला के तो खाते हुए, मसलन ड्राई फ्रूट वगैरह, और दालें पंजीरियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। वो भी घरों में सियानी खवातीन जो है वो बना के रख देती हैं। वो जो दालें बनती थी, पंजीरी बना करती थी, पिन्नियां बना करती थी, उनमें भी कितनी मेहनत डलती थी, कितनी मेहनत शामिल और टेस्टी बहुत होती थी। और वो मौसम के हिसाब से इंसान का वजूद को बड़ी सपोर्ट करती थी सर्दी के लिए। और एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा सब बहन भाइयों को, नाजरीन को भी, और आप लोगों को भी, और अपने आप को भी, कि ये जब सर्दियां शुरू होती हैं तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल मौसम होता है, इस हवाले से कि हमारे किसी बहन भाई के पास सर्दी से बचने के लिए कोई कंबल, रजाई वगैरह, लोहा वगैरह है या नहीं, या गद्दा वगैरह है या नहीं, सर्दी स्वेटर वगैरह है कि नहीं, जराबे शराबे, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को जरूर देखना चाहिए, महल्लेदारों को, कि किसी के पास अगर ऐसी चीज नहीं तो आपके पास ज्यादा है तो फौरन उसको प्रोवाइड करो, वरना वेरी बैड। सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब आपकी खिदमत में पेश है अय्यी का खबरों पर पुरमगई तबसरा। यार पुरमगई जरूरी होता है या पुरनिहारी भी हो सकता है? जो तुम्हारे दिल में आता है यार करो, पुर पुलाव करो, पुर जर्दा करो। यार बड़ा तुम इग्नोर सा कर रहे हो मुझे। बात अच्छी, जो तुम्हारे दिल में आता है करो, पुरनिहारी करो, पुर, बहुत अच्छे यार। तुम तो ऐसे जो बड़ा ज्यादा होटल नहीं चल रहा होता जिस मालिक का, वो नहीं जिस तरह कहता गया दे जो हद हो गई यार। चलो नाज़रीन, हस्बे ज़ायका तबसरा पेश करता है ये। अच्छा जी, बहुत सियासत कर ली, अब रहमान मलिक नहीं रहमान बाबा हो गया हूँ। नवाज शरीफ के लिए दुआ ही कर सकता हूँ, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक। ऐसे बाबे की दुआओं से बचना चाहिए।
بہت اچھے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں جناب بابا عبدالرحمان ملک صاحب. اور بابا تو بندہ جناب بڑے چلے کاٹ کے بڑی عبادتیں کر کے اللہ توبہ کر کے انسانوں میں محبتیں بانٹ کے بابا بنتا ہے. غیر ممنوعہ بور کے لسنس بانٹ کے بابا نہیں بنتا. ویسے بابا رحمان ملک صاحب آپ جیسے بابے کے متعلق بزرگ کہہ گئے ہیں اڑی بابا 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 اڑی بابا. ایک اور بزرگ نے بھی آپ کے متعلق کہا کہ تجھ سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تجھ سے ملنے کو دل کرتا. یہ کہا تھا تجھ سے بچنے کو دل کرتا ہے. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. چھی 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 نہیں بابا پیار منگدا. بابا وے کلام روڑ کڑیے نیلا دے یور. ایسا کلام روڑا ملک صاحب نے آج تک عوام چیخیں مار رہی. ایک بابا وہ بھی تو ہوا کرتا تھا نا جس کی لوری سنا کرتے تھے آ گیا بابا چھابا روٹیاں دا کھا گیا بابا چھابا روٹیاں دا. دیکھو یار اب کھا جو کیا بابا چھابا روٹیاں دا تو اس کو ضرور اب تم نے دھیان کرنا ہے. اگلی خبر پڑا کرو ہمیں خطرناک باتوں پہ بھی نہ ہنسا کرو. سوری. اچھا جی زمانہ قدیم کا انسان بھی چٹپٹے کھانوں کا شوقین تھا. ڈنمارک اور جرمنی سے ملنے والے 6000 سال پرانے پیالوں میں بھرپور مسالے ملے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہزاروں سال پہلے بھی لوگ بڑے لذیذ قسم کے کھانے کھاتے تھے. ہر چیزیں بڑی مزے کی بکتی تھی بازاروں میں. مجھے ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ یہ جو فرعون کے گھر کے کھبیات گلی جاتی تھی نکر پہ گول گپیوں والی ریڑھی ہوتی تھی. ادھر سے فرعون آتے جاتے نکلتے گول گپے کھاتا تھا اور اتنا بڑا گول گپا بکتا تھا اس وقت. اور پیسے بھی نہیں دیتا تھا. ہاں اور اس وقت کو 10-15 روپے نہیں تھے بنتے گول گپیوں کے. ہزاروں روپے بنتے تھے کیونکہ گول گپا بھی اتنا بڑا ہوتا تھا. ہاں تھوڑی مار کے اس میں موری کرتے تھے اور اس کے بعد بالٹی کے ساتھ اس میں چنے ڈالتے تھے کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے منہ بھی بہت بڑے ہوتے تھے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم بہت پرانے ہو. اور بھائی میں تو منہ کے حساب سے توڑوں میں بھی نہیں نظر آتا جتنا سائز کا اس وقت منہ ہوتا تھا. 15-20 فٹ کے قد ہوتے تھے. تمہیں کیا پتا ہے ہسٹری کا؟ یہ جو چنگیز خان ہے جانتے ہو اسے؟ نہیں. تو اب بندہ تمہیں کیا بتائے تمہیں پتہ ہی نہیں چنگیز خان کون ہے. اس کا متعلق یہ رہا ہسٹری پڑھو. یہ ہر جنگ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں پیٹھیاں والے لڈو کھاتا تھا ورنہ اس سے جنگ ہی نہیں تھی ہوتی. جھانسی کی رانی کو جانتے ہو؟ نہیں. چنگے پڑے بندے کو جھانسا دے کے نکل جاتی تھی. اس کی ہسٹری پڑھو ذرا. اتنی امبلی کھاتی تھی وہ. یہ بڑے ٹیسٹی چیزیں کھانے والے لوگ ہوتے تھے پرانے. اور یہ کو اپنی ٹیسٹ آیا نمک مرچ مسالیوں والا. یہ بہت پرانا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جو نمرود تھا نمرود نے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ امرود پہ کالا نمک چھڑک کے کھائیں تو یہ آدھا مزہ آتا ہے. یہ کو اب کے ٹیسٹ کی باتیں نہیں ہیں. یہ بہت پرانی باتیں ہیں. اچھا. پارکنگ کی جگہ تلاش کرنے کی فکر سے ہمیشہ کے لیے آزادی. کورین ماہرین نے فولڈنگ گاڑی تیار کر لی. بہت اچھے. یہ گاڑی فوری طور پہ پاکستان منگانی چاہیے. اچھا. کوریا میں تو پھر ہر سڑک کے اوپر کو 3-4 پارکنگیں بنی ہوں گی. یہاں پاکستان میں تو ہر چوک میں گڈی اٹھانے والا لفٹر ہوتا ہے. پارکنگ کہیں نظر نہیں آتی. سوچ سمجھ کے تجویز پیش کیا کرو. یہاں پہ پھر چوروں کو کتنی آسانی ہو جائے گی. ایمان سے گاڑی لپیٹی لے گئے. نہیں یار سہولتیں بھی تو ہیں نا. جن لوگوں کے پاس گھر میں گراج نہیں ہے وہ بھی گڈی فولڈ کر کے سرانے تھلے رکھ کے سو سکتے ہیں. سویرے اٹھ کے بچے کو کہہ رہے ہوں کہ پتر گڈی تھلے میرے سگٹ لے گیا. اور جس بیگم کی یہ خواہش ہو کہ میرا خامد دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر نہ جائے وہ خامد کی گڈی لپیٹ کے رجائیوں والی پیٹی میں رجائیوں میں رکھ دے. اور اگر شوہر کی یہ خواہش ہو کہ بیوی نہ اس بات پہ اصرار کرے کہ گاڑی پہ باہر چلے ضرور پھڈا ڈالے گا آگے سے. اپنے لیے ضرور سہولت ڈھونڈے گا. وہ کہہ دے بیگم کو کہ میں نے فولڈ کر کے رکھی تھی اب وہ کھول نہیں رہی اڑ گئی ہے. اچھا جی ہمیشہ پاکستان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے پرفارم کیا وینا ملک. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اس طرح تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے 5 سال تک ملک و قوم کی عزت کی خاطر پرفارم کیا ہے. دیکھو
तबसरा करके रहेगा ये। जी जुनैद साहब, बिल्कुल सीधा सीधा मेरा सवाल है और मुझे बिल्कुल सीधा सीधा जवाब चाहिए। मान लिया कि इंटरनेट जो है ये आज की जरूरत है, बच्चों के लिए भी बड़ा जरूरी है, बड़ों के लिए भी बड़ा जरूरी है, घरों के लिए बड़ा जरूरी है। इंटरनेट के बगैर हम अब आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। मगर यार हमारी तहजीब, सकाफत, मजहब के हवाले से जो इस नेट के ऊपर गंद मचा हुआ है, इसका क्या किया जाए? खुदा के वास्ते मुझे इसका जवाब दे दो बस। यार ये कॉम्प्लिकेटेड, बल्कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। इसका सीधा सीधा जवाब तो मेरे पास नहीं है। जवाब तो टेढ़ा है, घर जाके तुम उसको सीधा कर लेना। नहीं, सीधी बात है भाई, बंदा ही टेढ़ा है तो टेढ़ा ही जवाब देगा, सीधा जवाब तो नहीं देना। और भाई अगर ये मामला इतना सीधा होता तो इसका अब तक हम हल निकाल चुके होते। इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है, इसके आर्गुमेंट्स मौजूद है, इसके काउंटर आर्गुमेंट्स मौजूद है। अगर आप एक बात करते हो, जवाब में उसकी दूसरी दलील मौजूद है। आप कहते हो बच्चों पर पाबंदियां लगा दी जाए, बच्चे कहते हैं जी आज के दौर में पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। वो कहते हैं जी स्कूल से हमें काम मिला है, वो इंटरनेट पे होना है। हाँ, और आप कहते हो जनाब कि आप अपना पासवर्ड बता दें, वो कहते हैं आप अपने पे शक कर रहे हो, आप अपने सगी औलाद पे शक कर रहे हो। उसको आगे से बंदा कहे हाँ ये कहना पड़ेगा, शक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वाकई बिल्कुल ऑन अ वेरी सीरियस नोट अब एक ऐसी स्टेज आ गई है जहां पे इंटरनेट के इस्तेमाल के हवाले से वालिदैन और बच्चों के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये खत्म करना होगा। अब जरूरत जो बन गया, माँ बाप को खुलकर अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आपको इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाज़त दे रहे हैं, आपको कंप्यूटर लेके दिया है, आपको स्मार्टफोन लेके दिया है, आपको आईपैड लेके दिया है, आपको ये लेकर दे दिया, फलां चीज़ लेके दे दी है, लेकिन इसके इस्तेमाल की कुछ हदूदो कयूद होनी चाहिए, ये शर्त है। नहीं, पहले हदूदो कयूद जो तुमने बताई थी कि जी ये कमरे के अंदर नहीं होना चाहिए, ये सबके सामने होना चाहिए, ये ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे माँ और बाप की नजर किसी बुजुर्ग की हो स्क्रीन के ऊपर है। मगर अब तो ये टेलीफोन मोबाइलों में आ गया है, अब जिधर मर्जी बच्चे बैठ के जब मर्जी वो नेट नूट खोल के बैठ जाए। भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मामला पेचीदा से पेचीदा तर होता चला जा रहा है, मामला कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा है। अब आप कितना चेक रखेंगे बच्चे पे? पहले जो हम ये एक मोटी सी बात की जाती थी, बड़ी अच्छी एक तजवीज़ थी कि जनाब कंप्यूटर आप टीवी लाउंज में रख लो, आप जहाँ सारे बैठते हैं और नज़र के सामने। अब इतना सा मोबाइल है, 2-3 साल के बाद घड़ी में मोबाइल आ जाएगा, सारा कुछ आप घड़ी पे देख सकते, आ गया है, बल्कि आप कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो मेरा। और इस हवाले से जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बहुत खौफनाक हदों को छू रहे हैं। हम मतलब आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाएगा। हम कब तक इसको यानी कारपेट के नीचे इस गंद को धकेलते चले जाएंगे, कभी आज़ादी इजहार के नाम पर और कभी जनाब जदीद ज़माने की ज़रूरतों के नाम पर। अब मामला इस कदर ख़तरनाक है कि पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे सुनो, उनमें से 65% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें सिर्फ 11 साल से 25 साल की है। यूथ इस्तेमाल करती है। और बीबीसी का एक सर्वे हमें यह बता रहा है कि 11 साल का एक बच्चा जो है वो किसी ना किसी अंदाज में इंटरनेट पर गैर अखलाकी मवाद से एक्सपोज हो चुका होता है। 11 साल का एक बच्चा यार। और पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर एक सेकंड में 30,000 से ज्यादा इंटरनेट सार्फिन जो है वो गैर अखलाकी मवाद देखते हैं। वो एक बार आया था ना, जब हमने भी उस पर गुफ्तगू की थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी ये जो गैर अखलाकी मवाद देखने के हवाले से पाकिस्तान सर फहरिस्त मुल्कों में शामिल हो चुका है। उस पर बाज़ लोगों ने कहा था कि ये फेक रिपोर्ट है, बाज़ ने कहा था कि जी ठीक रिपोर्ट है। याहू ने और गूगल ने अपना उस पर वर्शन दिया था। कता नज़र उस रिपोर्ट के, ये तो एक फैक्ट है। ये बीबीसी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 25% पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ गैर अखलाकी मवाद सर्च करते हैं इंटरनेट पर। अब हालात तो यहां तक पहुंच चुके हैं और हमारे पास में कुछ नहीं है। देखो ना, बीबीसी की रिपोर्ट है, यानी हमें रिपोर्ट भी गैरों की बीबी दे रही है। और देखो जिन मुल्कों में मतलब कौमों को अपनी नई नस्ल की फिक्र लाक होती है वो क्या करते हैं। हमारे यहाँ ये काम किसका है? टेक्निकली ये काम तो पीटीए का है ना,
جو دیگر کاموں میں پڑی ہوئی ہے. اب پی ٹی اے نے اپنی مقدور بھر کوششیں کی ہیں کچھ لوگوں کے کہنے پہ کہ خدا کا واسطہ ان غیر اخلاقی جو ویب سائٹس ہیں ان کو کچھ کنٹرول کیا جائے. تو اب ان کے پاس جو ٹیکنیکل فیسلٹی ہے وہ یہ ہے ایک اندازے کے مطابق کہ پی ٹی اے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10,000 ویب سائٹس کو بلاک کر سکتی ہے. یہ پی ٹی اے مین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جس کے انڈر یہ سب کچھ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. نہیں پی ٹی اے ویسے تو کمپیوٹر پہ پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے لیکن پی ٹی اے کا بھی ہولڈ. یہ دیکھو یہ لازمل نیٹ پہ بیتی کرائے گا. نہیں اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک پی ٹی اے اپنی اس ٹیکنیکل جو فیسلٹی ہے اس کو امپروو نہیں کرتے, اس میکانزم کو امپروو نہیں کرتے, اس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہم پتہ نہیں فرسودہ کس دور میں ہم اکوپمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اسی نظام سے ان غیر اخلاقی ویب سائٹس کو کنٹرول, جن ملکوں نے کرنا ہوتا ہے نا. اب چین ہے, وہاں پہ ایک تو ہے نا گریٹ وال آف چائنا, ایک ہے گریٹ فائر وال آف چائنا. وہ کم از کم جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ ویب سائٹس کو کنٹرول کر سکتی ہے, بلاک کر سکتی ہے. اچھا 5-10 ہزار, آپ 5,000 ویب سائٹس کو, غیر اخلاقی ویب سائٹس کو کنٹرول کرتے ہو, وہ تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے. اور چینیوں نے اپنی نئی نسل کو اس غیر اخلاقی مواد سے بچانے کے لیے ایک اور بڑا زبردست کام کیا ہے. انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جس کو ہر کمپیوٹر میں انسٹال کرنا لازمی ہے. آپ اس کو ان انسٹال کر ہی نہیں سکتے. گرین ڈیم یوتھ اسکواٹ کے نام سے, اس پہ آپ کوئی بھی غیر اخلاقی چیز نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ کے ہاں وہ انسٹال ہو گیا ہے, آپ کوئی غیر اخلاقی چیز دیکھ ہی نہیں سکتے. میرا خیال ہے کہ جو قومیں زندہ قومیں کہلانے کی حقدار ہیں انہوں نے تو اپنی نئی نسل کو یوں بچایا ہے. یعنی چینیوں نے بھی گندی جو ویب سائٹ ہیں وہ اپنے بچوں سے دور کر لی. جی بالکل. اور ہم نہیں کر سکے جن کا مذہبی حوالے سے بھی, معاشرتی ہر حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. یہ اب ایک اور اخباری سروے کے مطابق جو بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں یا پی ٹی اے سمجھتی ہے بلکہ کہ ہم نے ان سائٹس کو بلاک کر دیا. ایک سروے, اخباری سروے ہمیں یہ بتاتا ہے 80% بچوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بآسانی ان سائٹس کو ان بلاک کر لیتے ہیں. 80% بچوں کا. ہاں جی یار, یہ یوٹیوب جو پچھلے دنوں بند ہوئی تھی, میں نے خود بچوں کو سنا یہ کہتے ہوئے وہ پراکسی لگا کے بات نہیں, ہم کھول دیتے ہیں آپ کو. پراکسی لگا کے وہ کھول لیتے ہیں سائٹ. اچھا جی, میرے پاس ایک تجویز ہے ایسی کہ اگر آپ وہ اپلائی کریں تو میرا خیال ہے کچھ بچت ہو سکتی ہے ہمارے والوں کی. وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو بچے کو کہیں کہ بھائی جان آپ کو انٹرنیٹ یا موبائل یا کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں, نو پرابلم, آپ نیٹ استعمال کریں, ویری گڈ. آپ کی ضرورت ہے سکول کی, آپ کے نالج کی, آپ کے کسی حوالے سے بھی چاہیے آپ کو. مگر سب سے پہلے یہ سن لو کہ یہ گندی ویب سائٹس وغیرہ جو ہیں یہ دیکھنے کے نقصانات کیا ہیں. ہاں پہلے تو اب کھل کے بچوں کو بتانا چاہیے. بالکل. دوسرا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹے اب یہ جو کمپیوٹر ہے نا اور یہ جو انٹرنیٹ ہے, اس پہ جو پاسورڈ لگے گا, اول تو لگے گا نہیں, اگر لگے گا تو اس کا مجھے علم ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے اس پاسورڈ کو چینج کیا تو میں خود آپ کا انٹرنیٹ بند کر دوں گا, آپ سے سارا کچھ یہ لے لیا جائے گا واپس. پھر بشک تمہاری ضرورت اور بشک تم چیخیں مارو. اور دوسری بات یہ بھی ہے بیٹا کہ فیس بک اپنی ایک تم بنا سکتے ہو, بسم اللہ آئی ڈی, فیس بک کا آئی ڈی ایک. اگر فیس بک آئی ڈی کو سیکنڈ تم نے بنائی, مجھے نظر آ گئی فیس بک کے اوپر, تو بیٹے میں تمہاری آئی ڈی پہ ڈانگے ماروں گا, یہ یاد رکھنا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. نہیں اس مسئلے میں بڑا سخت ہونا چاہیے یار. بالکل. یار تم مانو یا نہ مانو, ہے تو یہ بد تہذیبی, بلکہ پرلے درجے کی بد تہذیبی ہے. ساروں کے درمیان بیٹھ کے کان میں چابی مارنا, چابی پھیرنا, یا کوئی بھی سب کے درمیان بیٹھ کے کان میں کوئی اس طرح کی چیز پھیرتے رہنا بہت اگلی لگتی. یار اگر کوئی بندہ غصے میں کہے کہ کان کھول کے میری بات سن لو, تو پھر چابی پھیرنی ہے کان میں, کیسے کان کھلیں گے؟ تو تم اپنے کان یوں کھول دیا کرو یار. کیا بھائی اتنے میرے لٹھے کے کان کے میں ایسے کھولوں.
बात तहजीबी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो मौसम के हवाले से है। आजकल हबस का मौसम शुरू हो गया हुआ है, आंखों शांखों में खारिश होती है, बजाय टिश्यू के या किसी साफ सुथरी चीज के हम लोग अक्सर आंखों उंगलियों से आंखें साफ करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उंगलियां किसी वक्त गंदी भी होती हैं, जरासीम लगे होते हैं जिससे आंखें भी खराब होने का आशोबे चश्म हाँ जी, और नजर भी कमजोर होती है इससे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी आजकल हबस की जो बात है ये भी मैं एक और कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे या सरकारी दफ्तर में जाते हैं और आजकल अक्सर ये देखने में मिलता है कि बत्ती शती गई हो ना तो सारे बटन खोल के तो ऐसे पीछे कमीज उठ के तो आगे बंदे बैठे होते हैं दफ्तर में, या बल्कि कमीज उतार के कई निरी बनैन पहन के बैठे होते हैं टिड्डी जी निकाल के। बस खुदा के वास्ते ये पब्लिक प्लेस है, कोई मुहज्जब आदमी अजीजी जैसा अगर दफ्तर में दाखिल होता है तो वो क्या सोचेगा कि वेरी बैड, दिस इज पेटू मैन। अच्छी भली तुम जेन्युइन बात कर रहे होते हैं जिसमें असर भी मौजूद होता है, लेकिन बेड़ा गर्क कर देते हो कि मिसाल दे के। तुम क्यों ऐसी क्या बात मतलब मिसाल दे के? मतलब छोड़ो, मैं कहता हूँ मतलब अपने मिसाल यार देते तुम हुए तो गौर किया फटाफट ही जर्नल हमीद गुल बन जाते हो, एंकर ही रहा करो, तुम तो याद ही मुहैया ही हो जाते हो। अच्छा जी, एक और बदतहजीबी है, पता नहीं लोग इसको बदतहजीबी समझते हैं या नहीं। आम तौर पे देखा गया है जब मेहमान किसी के यहाँ कोई जाता है या दोस्त कहीं पे इकट्ठे होते हैं, हॉस्टल्स में ये बहुत देखने में आया करता था कि एक दूसरे का परफ्यूम इस्तेमाल करना। ये भी ठीक है, किसी टूर पे गए हो, किसी दोस्तों के साथ मिलके या होटल में रह रहे हो या इकट्ठे कहीं भी रह रहे हो, अगर बैचलर लाइफ मिल के दोस्त गयार रहे हो तो एक दूसरे का परफ्यूम इस्तेमाल कर। अब परफ्यूम की कीमत जरा नजर में रखो शेख साहब, और फिर बंदा अंदाजा लगाए कि अगर कोई 3-4 बार इस्तेमाल करे तो 5वीं 6ठी दफा आपका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है तुम्हारी बात, मगर तुम जैसे लोगों को ये भी यहन में रखना चाहिए ना कि दोस्त को गाहे बगाहे परफ्यूम गिफ्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बेचारा बदतहजीबी करे। और बदतहजीबी इसमें सबसे ज्यादा ये होती है कि पूछे बगैर आपकी कोई चीज इस्तेमाल। वही ना जी, वही ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बंदा पहले ही उसको दे दे परफ्यूम कर लो भाई जी, ये तुम इस्तेमाल। अच्छा, एक और बदतहजीबी पाजनायत जो मैंने देखी है जिसपे मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि बदतहजीबी से ऊपर की बात है, ये गलियों मोहल्लों में किसी जगह पे मकान अक्सर बन ही रहा होता है, हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई मकान ना बन रहा हो तो कोई कमरा ढा के कुछ बना रहे होते हैं या कोई बनेरा शनेरा बन रहा होता है, यानी मिस्त्री लगे होते हैं, और गली में ये मटेरियल पड़ा होता है कंस्ट्रक्शन का, बिल्कुल ईंटें या रेत वगैरह पड़ी होती है या बजरी, बिल्कुल। वो आप बगैर पूछे किसी के घर के बाहर से ऐसे जाके कौला भर के रेत का ले आए या गिलास भर के रेत का ले आए, ये बर्तन मुर्तन साफ करने के लिए घरों में इस्तेमाल हो जाता है। सही सही। तो वो इस तरह बगैर पूछे ईंटें 3-4 किसी के घर से बाहर से ले आना, ये बहुत बुरी बात है, बल्कि मैं तो इसे चोरी कहूंगा, ये बदतहजीबी तो नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल मगर जिस तरह होता है, मैंने कहा कि चलो इसको बदतहजीबियों में ही कह देना चाहिए, जितना ज्यादा ये इजी ले लेते हैं लोग इसको। यार असल में प्रॉब्लम ये है कि हम इसको चोरी समझते नहीं है, तो सीधी सीधी चोरी हम समझते हैं। थोड़ी सी चीज उठानी है, ये 2 ईंटें उठा ली, थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी सीमेंट, इसी चक्कर में फ्री हो जाते हैं। बल्कि मैंने तो ये भी देखा कि लोग कई इतने आराम से ज्यादा ही फ्री हो जाते हैं कि जाके मसायों के घर मिस्त्री लगा हो तो कह भी देते हैं, ये रहा मिस्त्री और थोड़ा सा रेत सीमेंट भेजिएगा, हमारे थड़े की नुक्कड़ टूटी हुई है। हाँ, हमारे यहाँ तो एक शेख साहब हुआ करते थे, उन्होंने अपना आधा पौना घर इसी तरह बना लिया था। अच्छा सुनो, एक और बदतहजीबी ये है जिसका इर्तिकाब बहुत ज्यादा देखने में आता है कि खवातीन घंटों लगा के कपड़ों की तह लगाती हैं, उनको सलीके से करीने के साथ अलमारी में रखती हैं, और मर्द हजरात जो हैं वो अपनी मर्जी से जब कोई शर्ट उठाते हैं तो या एक चीज़ पसंद नहीं आई वो खोल के उठा के फेंक देते हैं, दूसरी उठा के फेंक देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो मेहनत जो 2-3 घंटे की होती है खातून खाना ने, वो 2 या 3 मिनट के अंदर बर्बाद करके रख देते हैं। तो एहतियात किया करो ना, तुम्हें पहले भी मैंने समझाया था। एक दिन मैं घर इसके गया हूँ, बाहर खड़ा था दरख्त के नीचे, अच्छा। अपने दरवाजे के ना नाल को बंदा ना गालना बात, मैंने कहा क्या हुआ है,
कहता बस यार भरजाई तुम्हारी ने बाहर निकाल दिया। मेरे घर मैंने कहा है, कहता पौना घंटा इधर हो गया, को देख ही नहीं रहा, को पूछ ही नहीं रहा, रात शायद भी माँ के साथ मिल गए। मैंने कहा हुआ क्या है? कहता यार डबियां वाली शर्ट ढूंढ रहा था, 2-3 जगह से ढूंढनी थी, वो सारी अलमारी में उदल बुदल कर आया। और मैंने कहा सादी शर्ट निकाल के पेंसिल से उस पर डबियां बना लेते, जरूरी था कि डबियों वाली शर्ट ही ढूंढनी। मेरे घर के बाहर कोई दरख्त ही नहीं। नहीं, बिल्कुल रेगिस्तान में रिहायशी जनाब की। अच्छा, छोटी छोटी 2 बदतहजीबियों का जिक्र मैं भी करने लगी हूँ। जी जी। पहली ये कि हमारे घर में फ्लोर कुशन्स होते हैं, सोफा कुशन्स होते हैं और तकिए होते हैं। तुम्हारे घर में होते हैं? सबके घरों में, सबके घरों में ही होते हैं यार, क्या करते हो? अच्छा, बहुत कैजुअली हम उस तकिए को इस्तेमाल करते हैं, उसको बल्कि तकिया नहीं, उसको गाँव तकिया बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस बात तहजीबी से, ये तकिया दूरा करने से या गद्दी दूरी करने से कई दफा रुई जो है वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है बीच में, और उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। हालांकि जितना मर्जी आप तकिए को कहें गाँव, वो नहीं गाँव तकिया बनता। अच्छा, दूसरी बदतहजीबी टीवी लाउंज से रिलेटेड है। अक्सर ये होता है कि सारे बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं और कोई एक फर्द घर में एंटर होता है जो आके स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज चल रही हो तो कोई बंदा है तो बंदा कहला यार देखो यार कैसा मैच चल रहा है, तो कहता है कितने कितने करता वो जाके वो टीवी के आगे खड़ा होकर देखना शुरू हो जाता है। पिछले कह रहे होते हैं पीछे तो हो, हमें भी साथ देखने थे, इतना भी इंटरेस्टेड नहीं कि तो कल ही देखे। अच्छा, टीवी लाउंज के हवाले से एक और बदतहजीबी, गालबन हम एक बार पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि खाना खाते हुए यानी आलूदा हाथों से रिमोट इस्तेमाल करना, ये बहुत गंदी हरकत है। और उसके बाद अगर मैच हो रहा हो ना, अगर आप मैच देख रहे हो तो वो अगर रिमोट को घी लग जाए या चिकनाई लग जाए तो फिर मैच के दौरान प्लेयर स्लिप प्लेयर में स्लिप हो जाता है। और दूसरी बात, रिमोट भी खराब हो जाता है। रिमोट की कभी सफाई करो तो अंदर से 1.5 किलो 2 किलो घी निकलता है। ट्राई करना। पिछले पकौड़े इसने वो रिमोट वाले घी से तले जो तुम्हें बड़े पसंद है। यार ये तो आगे से हैरान को ना सलीम मुराद ही बन गया होगा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हर शादीशुदा शख्स इस बात से इत्तफाक करेगा कि उसकी बारात का दिन उसकी जिंदगी का अनोखा तरीन दिन था। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक नए नवेले दुल्हा राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आप सही कह रही हैं, अनोखा दिन नहीं होता है शादी वाला भी। अच्छा, आप यकीन करें, मुझे अब्बे ने कहा कि ये शर्माने के लिए अडमाल रखना है, तो ये सारे लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि मैंने परफ्यूम नहीं लगाया इसलिए अडमाल रखा हुआ है। दोस्त मुझे कह रहे थे। अच्छा। और ऊपर से आज ही सारी प्रॉब्लम में बननी थी, बस भी नहीं आई, बरात लेट हो गई हुई है। उस वक्त के सारे तैयार होके बैठे हुए हैं मगर बस नहीं आ रही। बस वाले को कहा था बड़े मामू ने कि 1 बजे तक आ जाना। अच्छा। और नहीं आ रही बस, उधर अंदर बैठ बैठ के सारी बड़ा थक गई है। और आज तो ऐसी मनूसी पड़ी हुई है, दरवाजे मारे के आगे से वैसे कई बसें गुजरती हैं, पा पी पू करती हुई। आज एक बस भी नहीं गुजरी और जो हमने मंगाई है वो भी नहीं अभी तक आई। फिर अब क्या करना है? घर में लड़ाइयां पड़ी हुई हैं, आज ही सारा कुछ होना था, ऐसा मनूस दिन आता है ना। आज ही सब कुछ, सारे आज ही नाराज होने थे, सारा खानदान आज ही लड़ा था। क्यों? बड़ी फूफी नाराज होकर घर बैठी हुई है, कहती है मैंने नहीं आना। और ऊपर से उसने कह दिया बेको कि मुझे लाड़ा मनाने आएगा तो फिर मैं जाऊंगी। अच्छा। अब बंदा पूछे लाड़ा आज कुड़ी को ब्यान जाए या फूफी मनान जाए? कुड़ी आ जाओ, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात? तो नाराजगी की वजह क्या बनी? अजीब सी जी, कल जो तेल मेहंदी थी ना, हाँ जी, हाँ जी। तो इस बात पे नाराज हो गई है कि फूफी से पहले खाला ने क्यों तेल लगाया लड़के को। नहीं, इसमें कौन सी बात है, तेल ही लगाया, कौन सा लाड़े का फीटा काट दिया जो बाद में फूफो नहीं काट सकती। बट तेल तुम भी लगा लो। और खाला ने तेल लगाने की हाथ ही काट दी। अच्छा। अड्डी शीशी रोल दिया। मैं कहा खाला बस कर, मुंडे को तेल लगाना या उसके सिर में पकौड़े तलने हैं।
छोटी खाला उसके बाद आगे हुई है, सारे मेरे तेल चसने से बाल कालड़ पे डिग पड़े थे। अच्छा। और छोटी खाला बुजुर्ग है, उसने सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे अभी नजर आता है, सर देखते ही ऊंची आवाज में कहती है, हाय हाय मुंडे दा ते सेड़ ही बर्बाद हो गया है। और मैं कहा खाला तेनू मुंडे दा ही सेड़ नजर आंदा, अपने खावड़ नू भी ते वेहो दे ते कन पट्टियां भी वेलियां हो गई हुई। खालू साडा कुर्सी पे बैठा हो तो ऐसा लगता है मालक एट 8 विद दुनिया न्यूज चल रहा है। हड़ बंडे ही लड़ा हुआ है, हड़ बंडे उठो, मेरे दोस्त बहुत शौकी हैं, नाम उड़ा दो, मुझे अब्बे ने कहा कि माल नाक के ऊपर रखो, अब्बे ने ला के दिया। एक दो टकाने लगा मुंडा बेहोश करन लगे हो, दूजा कहता है मुंडे दे मुंह च झग निकल दिए, फिर तीजा कहता मुंडे दे मुंह ते माल रखे, मुंडे ने लड़ाला सुटनियां बंद नहीं की। मैं कहा बंदे बनो, तुमको तमीज नहीं, आज मेरी शादी है तुम जुगटे लगा रहे हो, शरारते करते हैं। तुम्हारी पहले भी तो 3-4 बार मंगनी टूटी है। वह टूट जाती है मंगनी। क्यों? वो अब्बा कहता है कि तुम अपने पैसे जोड़ के खुद ब्याह करो। अच्छा। मैं पहली मेरी जो मंगनी है, मैंने उनको कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं, अभी थोड़ी देर और दे दो मुझे 6 महीने। कहते हैं हमने तो अपनी लड़की की शादी कर दी है। अच्छा। उन्होंने कर दी है, वो पहली पता नहीं बहाना ढूंढ रहे थे, उन्होंने मंगनी तोड़ दी है। अच्छा। मेरी जो पहली मंगनी हुई थी ना, अब उस लड़की की जो बड़ी बेटी है वो BBA में पलटी है। काफी उम्र में नहीं कर रहे आप शादी? बहुत अच्छे, तुसी ते इतना दिल छड़ रहे हो जिवें मैं फोटो होने तो बाद कर रही है शादी। जिंदा ते है ना, दिल होना चाहिए, जवान उमड़ा च की रखिया। हमारे मोहल्ले में पिछले महीने एक 88 साल के बंदे की शादी हुई है। जब उसकी बारात चली है ना, तो उसका बड़ा मुंडा खुद कह रहा था, कहता वेख जड़ा अब इन कब अस्पताल चलते जाना नहीं, कुड़ी भी आन के ढेर टुर पे। इतनी उसकी उम्र थी, उसकी दूध पियाई की जगह पे उसको ग्लूकोज की बोतल लगाई थी। उधर उसको गश पड़ गया था ना, पर बंदे बहुत ज्यादा थे, बेचारा घबरा गया था। और शादियों पे बड़ा लाश होता है, दिल घबरा जाता है, आपको क्या पता है? अच्छा, तो तुम्हारी वो मंगनी टूटने के बाद अब शादी हो रही है? नहीं, दरमियान में एक और मंगनी भी मेरी हुई थी। तीन मंगनी हुई है। दरमियान में जो दूसरी हुई थी ना, वो देखने के लिए आए थे मुझे लड़की वाले। अच्छा। तो उन्होंने मेरे अब्बे से पूछा कि मुंडा काटा की है। अब्बे ने कहा जी बस सारा दिन पैसे के पीछे ही भागा फिरता है। अच्छा। उठ के चले गए। क्यों? वो लड़की का एक बड़ा भाई पागल था, वो सारा दिन सिक्का रेड़ के पीछे भागा फिरता था। उन्होंने कहा ये भी कहीं पागल ही ना हो, चले गए। अब उसके बाद अब हो रही है शादी। अच्छा अच्छा। अब मेरे पास पैसे भी आ गए थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। बस अल्लाह करे, आज कमेटी उसने देनी है, वो दे दे, कल वलीमा है ना, उसी के साथ करना है। अच्छा अच्छा यार, ये बाजू तो नीचे कर लो, ऐसे किया हुआ है। नहीं, ये नहीं हटाना, ये निशानी रखी हुई है याद दहानी के लिए। अच्छा। ये मेरे दोस्तों ने कहा था इधर दुपट्टा डाल लो, जब तुम उधर से दुल्हन लेकर निकलोगे ना, तो दुपट्टा तार के इधर दुल्हन का बाजू डाल लेना। अच्छा अच्छा। और दुआ करे 10 बजे तक फाड़ग हो जाए, 10 बजे को ऊपर हो गए, पुलिस आ जानी है, फिर इधर दुल्हन के बाजू की जगह हथकड़ी ना पड़ जाए। सर वैसे वाकई ये टाइम का इशू भी बहुत बड़ा इशू बन गया है। बहुत बड़ा इशू बन गया हुआ है जी ये तो। पहले 10 बजे के बाद दूल्हा चौड़ी आंख से इधर उधर देखता था कि दुल्हन किधर से आ रही है। अब 10 बजे के बाद दूल्हा चौड़ी आंख से देखता है कि पुलिस किधर से आ रही है। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।